السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ویوم یحشرهم وما یعبدون من دون اللہ فیقول اانتم اضللتم عبادی هؤلاء ام هم ضلوا السبیل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔ تو اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر ان مشرکین اور کفار کا تذکرہ کر رہا ہے جنہوں نے دنیاوی زندگی کو پا کر اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کی، رسولوں کو ان کے مابین ان کے درمیان بھیجا گیا جو ان کو ہمیشہ ہدایت صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتے تھے، مگر ان مشرکین نے، ان کفار نے ان نبیوں کی بات کو نہیں مانا، بلکہ ان سے بغاوت کی، ان کی نافرمانی کی اور غیر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ تو اللہ رب العالمین چاہے کافر ہوں چاہے مشرک ہوں، سب کو کل قیامت کے دن جمع کرے گا، اور جو مومن رہیں گے ان کو اللہ رب العالمین ان کے ایمان کا بدلہ، ان کے دنیا کے اندر جو عمل کر رہے ہیں اس کا بدلہ اللہ رب العالمین ان کو دے گا۔ لیکن جو کافر ہیں ان کو اللہ رب العالمین ان کے اعمال کے مطابق، یعنی جو کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے پہلے مومنوں کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین مومنوں کے لیے جو جنت بنا کر کے رکھا ہے، جس کا اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ کیا ہے، وہ جنت ہمیشگی والی اللہ رب العالمین ان کو عطا کرے گا، اور اسی طریقے سے اس جنت کے اندر جو کچھ مزید ان کو خواہش اور ان کے دل چاہیں گے، اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو پرووائڈ کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین مشرکین کے تعلق سے فرماتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ اللہ رب العالمین حجت قائم کرنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا ہے، جب اللہ رب العالمین مشرکینوں کو، ان کفار کو جو اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب اللہ رب العالمین ان کو جمع کرے گا، ان سے حساب و کتاب شروع کرے گا، تو یہ ٹال مٹول کرنا شروع کریں گے، کہیں گے تو ہمیں تو ان لوگوں نے گمراہ کر دیا جن کی عبادت ہم کرتے تھے، وہ لوگ کہے کہ ہماری عبادت کرو، ان بتوں نے، ان پتھروں نے، ان صنم اور اوثان نے کہا تھا، یا ان نیک لوگوں نے جن وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں کو یہ پوجتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ لوگوں نے ہم سے کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو۔ تو اللہ رب العالمین اس حجت کو قائم کرنے کے لیے اور ان کے سامنے تمام چیزوں کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ان مشرکینوں کو اور اسی کے ساتھ ساتھ جن صالحین اور اولیاء کرام کی، نیک لوگوں کی قبروں کو یہ پوجتے ہیں یا ان کو وسیلہ سمجھ کر کے ان کی عبادت کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین جمع کرے گا، اور اسی طریقے سے جو پتھر وغیرہ جن کی پوجا پرستش کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین جمع کرے گا، اور اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ تو وہی اللہ رب العالمین نے کہا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ رب العالمین ان مشرکین کو، ان کفار کو جمع کرے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور اسی طریقے سے ان لوگ، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور ان لوگوں کو یا ان چیزوں کو جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، جن کی یہ پرستش کرتے ہیں،
सभियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जमा करेगा। फयक़ूलु, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा उन लोगों से सवाल पूछते हुए जिनकी इबादत की जा रही है दुनिया के अंदर, अअंतुम अज़ललतुम इबादी, की बताओ क्या तुमने मेरे बंदों को गुमराह करने, क्या तुम लोगों ने गुमराह किया? क्या तुम लोगों ने कहा था कि वो तुम्हारी इबादत करें? क्या तुम लोगों ने ये बात कही थी कि तुम्हारे सामने अपने जबी को खम करें? क्या तुम लोगों ने ये बात कही थी कि नजर नियाज, इस्तिगासा और इसी तरीके से तमाम इबादतें वो तुम्हारी करें? तो वो लोग कहेंगे अअंतुम अज़ललतुम इबादी हाउलाई अम हुम ज़ल्लु सबीला, या खुद ही वो लोग तुम्हारी इबादत करने लगे थे, या खुद ही वो लोग सिरात मुस्तकीम से भटक गए थे। तो उन्होंने अपने से ही तुम्हारी इबादत करनी शुरू कर दी बगैर तुम्हारे कहे हुए। तो वो लोग जवाब में कहेंगे क़ालू, तो वो लोग यानी जिनकी इबादत करते हैं, जिनको ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा पूजते हैं, वो लोग कहेंगे सुबहानक, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी ज़ात तो पाक है, मुनज़्ज़ह है तमाम किस्म के अयूब से और नक़्स से। मा काना यंबग़ी लना, ये चीज़ हमारे लिए मुनासिब थी ही नहीं। मा काना यंबग़ी लना, ये चीज़ हमारे लिए मुनासिब नहीं थी। अन नत्तख़िज़ मिन दूनिका मिन औलिया, कि हम तेरे अलावा किसी दूसरे को अपना वली, तेरे अलावा किसी दूसरे को अपना माबूद, तेरे अलावा किसी दूसरे की इबादत करें। वलाकिन मत्तअतहुम, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तूने इन कुफ़ार को, इन मुशरिकीनों को मत्तअतहुम यानी तमाम तरह की नेमतों से नवाजा, जिससे ये फ़ायदा हासिल कर रहे थे, जिससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। व आबाउहुम, और इसी तरीके से इनके बापों को जो तूने रफ़ाहियत, आराम, कुशादगी और मालो दौलत जो कुछ तूने नवाजा था, इसी की वजह से हत्ता नसउ ज़िक्रा, उसी मालदारी, उसी गिना और उसी आराम और उसी रफ़ाहियत और उसी माल दौलत में ये मगन होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझको भूल बैठे। और इन्होंने क्या किया? गैरुल्लाह की इबादत की। वकानु कौमन बूरा, और ये लोग हलाक वाले होने वाले और शर्मिंदा और पसीमा होने वाले कौम में से हो गए। यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको जमा करेगा और जिनकी ये इबादत करते हैं गैरुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा, उनको भी जमा करेगा, ताकि ये चीज़ उनके सामने वाज़ेह हो जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, जब उन लोगों से जो जिन लोगों की ये लोग पूछते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा, कि क्या आपने उनसे कहा था कि आप ये इबादत करें? तो वो लोग कहते हैं वलाकिन मत्तअतहुम, आपने जब इनको माल दौलत से नवाजा और ये लुत्फ अंदोज होते रहे, तो ये क्या हो गए? तेरे जिक्र से, तेरी याद से, तेरी इबादत से एराज कर गए, उसको भूल बैठे। गोया कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें माल दौलत दी है तो हमें दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए बाइसे नजात हो, हम इसको तेरे राह में खर्चा करें और कहीं ये हमारे लिए सबब ना बने कि हम जिसकी वजह से तेरी इबादत और तेरी तुझको भूल बैठे, बल्कि उसको सिरात भलाई के रास्ते में, खैर के रास्ते में और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हमारे लिए बाइसे नजात बनाए। फ़क़द कज़्ज़बूकुम बिमा तक़ूलून फ़मा तस्ततीऊन सर्फ़न वला नसरा वमन यज़लिम मिनकुम नुज़िक़हु अज़ाबन कबीरा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों से कहेगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, कि देखो जिनकी तुम पूजा करते हो उन लोगों ने तुमको झुठला दिया है। तुम जो कह रहे थे कि इन लोगों ने तुम्हें हुक्म दिया अपनी इबादत करने के लिए, उन लोगों ने नहीं दिया है, बल्कि वो लोग सामने आकर के तुम्हारी बातों को झुठला दिए हैं और तुमको काज़िब करार दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। फमा तस्ततीऊन सर्फ़न वला नसरा, तो तुम क्या है अब
इस अजाब को अपने नफ्स से हटा नहीं सकते हो और ना ही कोई तुम्हारा अब मददगार और हामी और नासिर है। वमन यज़लिम मिनकुम, और तुम में से जो जुल्म करेगा, यहाँ जुल्म से क्या मुराद है? अशिर्क मुराद है। अय मन युश्रिक मिनकुम बिल्लाही, कि तुम में से जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करेगा, व यअबुदु गैरल्लाही, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा गैरुल्लाह की इबादत करेगा, तो क्या है? नुज़िक़ुहु अज़ाबन कबीरा, तो हम उसको चखाएंगे बड़ा अजाब, शदीद और सख्त अजाब। इससे मुराद क्या है? जहन्नम। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर दूसरी जगह इरशाद फरमाया, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे इरशाद फरमाता है, वमा रसलना क़ब्लक मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयअकुलून अत्तआम व यमशून फिल अस्वाक़, कि ऐ नबी, हमने आपसे पहले जितने भी नबियों को, रसूलों को दुनिया के अंदर तौहीद की दावत, इस्लाम की दावत दे करके भेजी, वो उन लोगों की सिफत भी यही थी, वो लोग भी इसी हयत में थे कि वो लोग भी खाते पीते थे। वयमशून फिल अस्वाक़, और बाज़ारों के अंदर चलते थे। यानी कि यहाँ जो दलील बनाकर मुशरिकीन मक्का ने, कुफ़ार मक्का ने आपकी तरदीद की है, ये सही नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरीके से आपसे पहले नबियों को इंसान बना करके और जो इंसानी ज़रूरत होती हैं उन तमाम ज़रूरत को वो भी महसूस कर रहा था और उन तमाम चीज़ों की हाजत उसको भी लगती थी। बाज़ारों खाना खाना, बाज़ारों में आना जाना और तमाम चीज़ें, तो ये जिस बिना पर आपको, यानी कि आप भी खाते पीते हैं, बाज़ारों में आते जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी नबूवत का इनकार कर रहे हैं, सही नहीं है। इससे आप परेशान मत होइए, इससे आप परेशान मत होइए। वजअलना बअदकुम लिबअदिन फितना, और इसी तरीके से बाज़ को बाज़, वजअलना बअदकुम बाज़, और बाज़ इंसान को बाज़ के लिए हमने क्या बनाया है? इब्तिला और इख्तिबार के तौर पर, यानी आजमाइश के लिए बनाया है। यानी बाज़ को हम मालदारी देते हैं, बाज़ को गरीबी देते हैं। तो देखते हैं कि मालदार आदमी जो है अपनी मालदारी से अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में कायम रहता है कि नहीं रहता है। इसी तरीके से जो फ़कीर है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़कीर बनाया है, क्या वो सब्र अपने फ़क्र पर कर पाता है कि नहीं कर पाता है। इसी तरीके से बाज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत दी है, बाज़ को ज़लालत और गुमराही दी है। इसी तरीके से बाज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई है, बाज़ को मरीज़ बनाया है। तो इन तमाम चीज़ों को देख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है? लोगों को आजमाता है और देखता है कि अतस्बिरून, क्या तुम एक दूसरे को देख कर सब्र कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। व कान रब्बुका बसीरा, और तुम्हारा रब देखने वाला है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम चीज़ों को, यानी तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारे दिल के अंदर क्या है, अगर तुम सब्र कर लेते हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते पर कायम रहते हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है? तुम्हें उसके बदले से ज़रूर नवाजेगा। तो आज का दर्स हम इसी पर इत्तफा करते हैं। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।